तो कल हमने परसों हमने डिस्कस किया था, हम छठे अध्याय पर थे। तो छठे अध्याय की शुरुआत कैसे हुई? तो जैसे अध्याय 5 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, कर्म संन्यास मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है, कर्म संन्यास या कर्म योग, निष्काम कर्म योग? तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं आपके लिए निष्काम कर्मयोग बेहतर है। मतलब सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग से दोनों से सेम रिजल्ट, दोनों अच्छा है, लेकिन बेहतर है निष्काम कर, आपके लिए बेहतर है निष्काम कर्मयोग। तो उन्होंने अगर निष्काम कर्मयोग, अगर भगवान का कोई भी हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट, परिणाम अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो उसको निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। और उससे उसमें हमें क्या करना है तो वो हम 5वें अध्याय में डिस्कस किया, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्मयोग। और वहां पे दो चीज ये भी बताई थी, सांख्य योग मीन्स उसको संन्यास योग, कर्म संन्यास के रूप में लिया गया था वहां पर। कर्म संन्यास करेगा तो करेगा क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। तो दूसरा आता है अष्टांग योग। बोले निष्काम कर्म योग में भी हमें ध्यान तो भगवान पे ही लगाना है, भगवान को परिणाम अर्पित करना है, भगवान के बारे में ही सोचते सोचते हमें कर्म करना है। ठीक है, तो जब अष्टांग योग में भी क्या है, तो अष्टांग योग में भी वही है, अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, नो अंतरामस हो जाओ, मतलब पूरा अंदर ही, नो वी हैव टू गो इनसाइड विद इन, दैट्स द पॉइंट। तो वहां पर हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो ये छठे अध्याय के शुरुआत में हमने देखा कि detachment comes to one who realize that he is not autonomous in his action. He understand that without Lord's sanction he cannot do anything. Then detachment comes to one who, okay, already discussed. So basically Jiva is initiator, Krishna is a sanctioner, and three modes are the facilitators. So one who purifies his vision and activity by niskam karma yoga can make further advancement by practice of meditation on the super soul by Ashtanga yoga method. So before we proceed with Ashtanga yoga, we need sufficient amount of purification by niskam karma yoga. So that's what we discussed in last session. So by meditating on the super soul, one can develop devotion to him in bhakti yoga, understanding that Krishna is the supreme enjoyer, ultimate controller, friend. So by meditating on the super soul, I'm repeating again, one can develop devotion to him in bhakti yoga, understanding that, like, why we have to meditate on the super soul, that we discussed in the last verse of the Srimad Bhagavad Gita, 5th chapter, that bhoktaram yajatmasam sarva loke maheswaram surudam sarva bhutanam gyatvam santi ruchyate. Supreme enjoyer means bhoktaram yajatmasam, ultimate controller means sarva loke maheswaram, surudam sarva bhutanam, best friend means his best friend, one who knows these things and who worship the Krishna that way, then he will become peaceful. But one who desires to practice Ashtanga Yoga should not suddenly give up prescribed duty. So that's what Krishna started in 6th chapter, that who is real sannyasi and yogi, anasrita karma phalam karyam karma karoti ha sa sannyasi cha yogi cha na niragni na chakriha. So although working, a karma yogi renounces the result of his action. He is called sannyasi. Sannyasi doesn't mean that we have to just give up everything, but we have to offer the result to Krishna. And his mind does not dwell on the enjoyment of the senses. There are two things here. दो चीज है यहाँ पर, एक कर्मफल पूर्ण तरह भगवान की सेवा में हम भगवान को हम अर्पित कर देते हैं, और हो सकता है उस वक्त हमारी इंद्रिया ऐसा भी कर रहा हो, मतलब हमारी इंद्रिया भोग करने के बारे में सोच रही है। देखिए दोनों अलग चीज है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भोग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है नहीं सोचना चाहिए, फिर भी सोच रहे हैं, सोच आती है, और वो लोग क्या करते हैं, भगवान को सारा जो परिणाम है भगवान को अर्पित कर देते हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट कॉल्ड योगी एक्चुअली, बट देयर इज वन मोर क्वालिफिकेशन, दैट
his mind does not dwell on the enjoyment of the senses. That is another qualification, that in Niskam Karma Yoga, one have to think about Krishna. He should not think that, okay, he is enjoyer, but offering the result to Krishna. No, that's not the thing. At least, but he has made sufficient advancement, that he knows he has to offer all the result to Krishna, but he mentally is desiring, but physically is doing that. Okay, that's fine. Means he has made sufficient advancement. No problem, but he's not the stage of yogi. So we have to develop this thing that his mind does not dwell on the enjoyment of the senses. Okay. So nasikta karma phalam karyam karma karati sa sannyasi cha yogi na niragni na chakriya. Yoga and sannyasa are same. Detached action is same as renunciation. That's what we discuss. So in the first two verses, Krishna told that in Ashtanga Yoga should not give up Niskam Karma Yoga, and that sannyas and yoga are same. Sannyas and yoga are same. So should the Ashtanga Yogi practice Niskam Karma Yoga for his whole life? Krishna explained. Okay. Two levels of Ashtanga Yoga. Yoga Rukshur Muner Yogam. So that is beginning while performing Niskam Karma Yoga. One should cultivate detachment and also practice Ashtanga Yoga, Yam, Niyam, Pranayam, Asana that feeds off and gradually purify the heart of fruitive desire. So when we offer the result to Krishna, you are getting purified. You are getting purified. It is said when we constantly offer some service to someone, so we develop that attachment also. So basically, these are the 8 limbs of Ashtanga Yoga we saw: Yam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhi. We already discussed this part. Yam. What is Yam? In social discipline, Niyam means do's and don'ts. Yam means don't. Niyam means do's. Do's. What you have to do. Asana means sitting posture. Means you are doing the activity here. Okay, so Araruksha to Yoga Aruddha stage. So mind control and detachment from the sense object are requirement to come to the advanced stage called Yoga Aruddha stage. And Krishna explained importance of mind control. We discussed that part. Uddarid Atma Anatmanam, Natmanam Sadhe Atma. So mind is like a knife. So knife in the hand of doctor and in the hand of thief, both work differently. Okay. So same way, if the mind is controlled, it is like in the hand of doctor, and if mind is uncontrolled, it's like in the hand of thief. So mind is even a friend and enemy both. It depends how we have trained the mind. So we discussed this part. So we already had discussed this part. Okay, mind is that in senses like a hand, ear, nose, and all those things are higher than the dead matter, because hand and leg can control the dead matter. Higher than the dead matter is senses, and higher than the senses are mind, because they are dictated by mind. Higher than the mind is intelligence, who makes a decision what is good and what is not good, accepting and rejecting. Function of the mind is thinking, feeling, and willing. Higher than intelligence is soul. Okay, so we already discussed this part. 5 senses, mind. So horses are 5 senses, mind are like the ropes. Intelligence is a driver, soul is the rider. So we already discussed symptoms of person in Yoga Aruddha stage. So we discussed that how 3 levels are given there. That mental level, emotional level, and egoistic level is given there. That we have to control that. Chitatmana prasantasya paramatma samayita sitoshna sukha dukkhesu tatha man apmana comes at egoistic level. Sitoshna comes at the physical level. Sukha dukkha is come at emotional level. And another mention in the verse is
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मक कुटस्थ विचितेन्द्रिय इत्यति उच्यते समलोष्टास्मकाश्यन. So Suran Mitra Das मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते. So there are another three level. First one talks about personal level, personal development, that Sitoshna Sukha Dukha and all. Jnana Vijnana Truptatma Kutastha Kriya. So, and how we seize the external objects that is mentioned in this verse, Jnana Vijnana is Samloshtrasma Kashyana. And third is how you deal with the people, other people. So that is mentioned here. So one is for your personal self, how we deal with, of course, everything is per person. How we deal with the material objects surrounding us, and how we deal in the relationship is mentioned here. Now coming to the point, so having described the perfectional stage of Ashtanga Yoga, we'll now describe the activities in practice stage, means how you practice this Ashtanga Yoga, and the method to achieve the goal of perfection. So the second stage is Ashtanga Yoga. So basically, it is from 6. This till 6.34 it is mentioned about this part. Okay. So practicing stage of Ashtanga Yoga, what Krishna says. Krishna mentions chapter 6. Verse number 10, Suchode se pratishthape sthiramasanam atmana nati uchritana nicham chelajin pusottaram. So he says, to perform Ashtanga Yoga, sorry, this is, that is next verse. Yogi yunjit satatam atmanam rahasi sthita ekaki अच्छित आत्मा निरासिर परिग्रह. तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो ट्रांसेंडेंटल मतलब योगी वो क्या करना, ऑलवेज एंगेज इज बॉडी माइंड एंड सेल्फ इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम. उसको अपना जो शरीर है, मन है एंड आत्मा मतलब चित्त, कॉन्शियसनेस शुड बी एंगेज इन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम. भगवान के संदर्भ में उनको एंगेज करना चाहिए. He should live alone in secluded place. Now while we are हम ये सब डिस्कस चर्चा कर रहे हैं तो बस सब लोग थोड़ा सोचिएगा कि कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये. ठीक है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है वो थोड़ा सोचते जाइए. He should live alone in secluded place. अभी कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो थोड़ा सोचते जाइएगा. Should always carefully control the mind. तो हमें क्या करना है, अकेले रहना है एकांत जगह पे. He should be free from the desire and feeling of possessiveness. स्वामित्व का भाव हमें त्याग करना है. हमें मन को कंट्रोल करना है. ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे भगवान कैसे योग प्रैक्टिस करना है उसके बारे में. अगले श्लोक में बता रहे हैं. जो श्लोक बताया ये सुचोदय से प्रतिष्ठापि स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यद चितेन्द्रिय अक्रिया उपविश्यासने युञ्जत योगम आत्मविशुद्धये. तो यहाँ पे बता रहे हैं टू प्रैक्टिस योगा one should go to secluded place, like you can go to Gangotri, Yamunotri. वहाँ पर भी अभी तो लोग आ गए हैं. और maybe you can very deep forest in Himalaya you can go, or wherever you find no one will disturb you. Then should lay a kusa grass on the ground. कुसा ग्रास बिछाने की बात की गई है. I hope all of you have seen कुसा grass. Then cover it with the deer skin. मतलब deer skin मतलब जो मरा हुआ हिरण है उसका स्किन निकाला है, मार के निकाला नहीं है. ऑटोमेटिक नेचुरल डेथ हुई है उसके लिए. And soft cloth, because deer skin is such that if it is put, snake will not bite you. So there are some reason why people do. And if someone wears saffron cloth, tiger and lion kind of animal will not attack you because they feel that it's a fire and they run away. These are different things. So
The seat should be neither too high nor too low. जो हम बैठने की जगह ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए. It should be situated in the sacred place. पवित्र जगह पे होना चाहिए. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind. उसके बाद दृढ़तापूर्वक बैठना है हमें और योगा प्रैक्टिस करना है हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए. और कैसे? मन को कंट्रोल करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके, हमारे कार्य है उसको कंट्रोल करके, एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट. तो वन पॉइंट की बात की गई है यहाँ पर. ठीक है, तो अभी ये योगी है तो हो सकता है वो एक पॉइंट पर, एक ही जगह पे उनको फोकस करना है. उसको जनरली बोलते ब्रह्मरंध्र. ठीक है, तो आगे बताया गया है, आगे के श्लोक में बताया है, समकाय शिरो ग्रीवम धारेण चलम स्थिरम संप्रेक्षणासिकाग्रम स्वदेशाश्चनावलोकयन् प्रसन्नतात्मविगताभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम्य मत चित्त युक्तासित मत्परः. समकाय शिरो ग्रीवम मतलब जो हमारा शरीर, गर्दन और सर एक ही स्ट्रेट लाइन में बैठना है, ऐसे स्ट्रेट करके. ठीक है, और स्टेडीली एट द टिप ऑफ द नोज. तो आधी आंख खुली रखनी है और ये जो नाक का अग्रभाग की ओर फोकस करना है. Thus with unagitated and subdued mind, devoid of fear. फिर thus with unagitated subdued mind मतलब मन चंचल नहीं होना चाहिए और वो कंट्रोल होना चाहिए, उसके ऊपर पूर्ण तरह कंट्रोल्ड है. फिर फियरलेस होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए अरे मुझे कोई शेर आके खा जाएगा, सिंह आके खा जाएगा, या फिर जो भी है, क्या पाइथन है ना, क्या बोलते पाइथन अटैक करेगा, ये सब डर नहीं होना चाहिए. कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, ब्रह्मचर्य होना चाहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If someone doesn't follow brahmacharya strictly, then they will lose the determination power, and even the cleanliness, internal cleanliness will be lost, because that is the highest level of enjoyment one person can do in this material world. So again, if you involve in that, so that means that's like considering oneself as a bhokta. One should meditate upon me, means Krishna here, not myself, upon Krishna within the heart and make him the ultimate goal of life. भगवान के ऊपर, भगवान के बारे में ध्यान, भगवान के ऊपर ध्यान करना है. हृदय के अंदर, परमात्मा हृदय के अंदर बैठे होते हैं. एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. सो भगवान को हमें जीवन का अल्टीमेट मतलब सबसे महत्वपूर्ण गोल भगवान को बनाना है. तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन दी गई है, कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते. ठीक है ना. So then this verse we already discussed, Visaya Vinivartante and all. Anyway, so then he says in the 6.15, Yunjaneva sadatmanam yogi niyatam manasa santim nirvana parmam matsantamadi gacchati. Sorry, so in the previous verse there was a point of brahmacharya. So if someone follow brahmacharya, his memory power is very sharp. So they follow this kind of thing. It really has many ways, determination, memory power. So here he says that thus practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist is mind regulated, attain the kingdom of God or abode of Krishna by cessation of all material existence. So earlier, that meditation, concentration is so, focus was so powerful earlier, so that just by invoking, speaking those mantra with so much concentration and focus, because they have tapasya and all those siddhi, they can manifest
the weapon physically just by reciting the mantras. So that was like, advanced technology were existing. Beyond the this were the transcendental technologies. Okay. तो क्या करना है हमें? मन, शरीर और क्रियाओं को हमें काबू में लाना है, कंट्रोल करना है. तो क्या होगा? द मिस्टिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो योगी है, उसका मन रेगुलेटेड हो जाएगा और वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, और जो भी भौतिक क्रिया है वो सब समाप्त हो जाएगी. यहाँ पर एक बोला है. ठीक है. तो अगले श्लोक में बोला है नाति असंतस्त योगो अस्ति न च एकांतमनाश्रत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन. तो बोला है there is no possibility for one becoming yogi or Arjuna if one eats too much or eats too little, sleep too much or doesn't sleep enough. अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो नींद आ जाती है, और खाना ही कम करके तो गुस्सा, मन चिड़चिड़ा हो जाता है. वो आप सभी ने रियलाइज किया होगा. तो रेगुलेटेड खाना होना चाहिए. स्लीप टू मच, और कुछ लोग स्लीप बहुत कम सोते हैं तो उनका भी स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है. स्लीप रेगुलेटेड होना जरूरी है, खाना और सोना. और अगर ये रेगुलेटेड नहीं है तो कलयुग में बताया गया है कि सबका आयुष्य कम हो जाएगा, क्योंकि उनके इरेगुलर हैबिट है. बिकॉज दे हैव इरेगुलर हैबिट. उनकी आदतों में कोई रेगुलरिटी नहीं है. ठीक है. समय के अनुसार नहीं हो रहा है सब, बट सारा हैपाजर्ड. कभी रात को 12 बजे खाएंगे, कभी 2 बजे 1 बजे खाएंगे, कभी 6 बजे सुबह खा लेंगे, सॉरी शाम को. सारी रेगुलरिटी है. कभी बहुत कम सोते हैं, रेगुलरिटी नहीं, उसकी वजह से उनका आयुष्य कम हो जाएगा. और ये सब चीजें हैं, आपने अनुभव किया होगा. उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, कम सोते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है. तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके लिए योगा प्रैक्टिस नहीं है. तो अगर बोलते हैं अरे ये करना है, सब छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ने की बात की नहीं है भगवान ने. ठीक है, सारी चीजें, बट रेगुलेट करने की बात की है. ऑफ कोर्स रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगले श्लोक में बता रहे हैं युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः. He who is regulated in habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pain by practicing the yoga system. अगर हम ये सारी चीज रेगुलेट कर देते हैं, eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. But regulate करना जरूरी है. तो हम थोड़ा समय पहले ना एक कहाँ गए थे, उडुपी गए थे. तो वहां पे एक जगह पे गुरुकुल है. 1 साल पहले की बात है. वहां पे एक भक्ति राघव महाराज करके है जो पूरा गुरुकुल चलाते हैं बच्चों का. तो गुरुकुल में गए हम. बच्चे हैं छोटे छोटे, 5-6 साल से. गुरुकुल है ना, गुरुकुल में जाके सब ट्रेनिंग को दिया जाता है. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते. पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज नहीं करते, तो वो बोले as soon as electricity comes your schedule will be disturbed. मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग तो करते हैं. शहर में जो मंदिर है सब जगह निर्देश बता रहा कि ये सब चीजें पॉसिबल होता है. शेड्यूल अगर रेगुलर करना है तो बहुत सारे आधुनिक चीजों से छुटकारा पाना होगा. अभी ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे ठीक है हम जा रहे हैं, नहीं करना. तो बात इसके नहीं है. तो ठीक है. तो ये सब चीजें योगा में है. तो आप थोड़ा सोचिएगा प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है. जब लाइट है, थोड़ी सी लाइट आती है तो हम देखते हैं कहाँ से लाइट आ रही है. थोड़ा अभी एक नोटिफिकेशन आ जाता है मैसेज का, पूरा मतलब आधा घंटा निकल जाता है, पता नहीं लगता कहाँ से कहाँ पर. तो बेसिकली वी शुड बी रेगुलेटेड फॉर ऑल दोस थिंग. हाँ, I said about light that no, we asked that means don't implement it at home or anything, because I am not telling this to disturb the situation at the home, but just what we had. I don't want to follow actually, but I missed the part. Sorry. So the point was that we asked that Bhakti Raghav Swami Maharaj that why you don't use electricity. So he said
as soon as electricity come, your schedule will be disturbed. Means when we sleep, we don't know. Everything will be disturbed. Okay. One day you sleep late, then whole schedule will get disturbed. Right? So that's what he was telling. So that's what I told you when we are discussing this thing. हम ये चर्चा कर रहे हैं तब सोचिएगा प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है आधुनिक युग में कितना पॉसिबल है, तो उसके बारे में बता रहा था। ये सारे रेगुलर करने की बात की है। अगले श्लोक में बोल रहे हैं फिर कि क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्तेति उच्यते तदा। तो यहाँ पर बता रहे हैं when the yogi by practice of yoga क्या करे, उसकी जो मानसिक क्रिया है उसको नियंत्रित कर रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है। डिसिप्लिन मतलब समझ गए जो भी है। एंड बिकम सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर इज सेड टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड इन द योगा। बेसिकली अभी आपका मन आपके वश में आ रहा है, उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसे योगी। ठीक है, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं बेसिकली दिस इज अ परफेक्शनल स्टेज ऑफ योगा। तो अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, उसका मन किस तरह से लगा होता है। बेसिकली हमारे लिए जो भक्ति योगी है उसके लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आता है कि इनका ये अम्बरीश महाराज की कथा में आता है 9वें स्कंद में 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। तो कैसे करना है बोलते हैं, एक्टिविटीज ऑफ द योगी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन बाय हिज कैरेक्टरिस्टिक सीजेशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर। योगी की जितनी भी क्रिया होता है मटेरियल उपभोग से मुक्त होती है, स्पेशली सेक्स। And a perfect yogi is so well disciplined in the activities of the mind that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. This perfectional stage can automatically be attained by person in the Krishna consciousness. तो यहाँ पे आप ये सब चीजों से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सवे मना कृष्ण पदारविंदयोर वाचम वैकुंठ गुणानुवर्णवे करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति च अकृच्यत सतकथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने द्रसो तद्भृत्य गत्रस्परसे अंग संगमम ग्रहणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्य रसनम तद अर्पिते पादो हरे क्षेत्रे पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशे पदाभि वंदने कामं च दास्यतु काम काम्यया यथोत्तमं श्लोक जन आश्रय रति। कैसे हमें लगाना है, भक्ति की बात है। देखिए ये मतलब हम भक्ति में कैसे वो क्रिया कर रहे हैं, ये जो सारी चीज बताई है वो एक्चुअली जब भक्ति योगा जो हम करते हैं उसमें अष्टांगा मतलब सारी क्रिया ऑटोमेटिक आ जाती है। तो यहाँ पे वो समझाया है प्रॉपर। King Ambarish first of all engage his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Then one after another he engages words in describing the transcendental qualities of the Lord. ठीक है, जो सुना वो बता दो किसी को। His hands in mopping the temple of the Lord. His ears in the hearing the activities of the Lord, his eyes seeing the transcendental from the Lord, his body in touching the bodies of the devotees, his senses of smell in smelling the scent of the lotus flower offered to the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaf offered at the lotus feet of the Lord, his legs in going to the place of pilgrimage and the temple of the Lord, his head in offering obeisance unto the Lord, and his desire in executing the mission of the Lord. All these transcendental activities are pretty pure devotee. So don't try, means घर पे अपनी सिचुएशन देख इम्प्लीमेंट करना है बुद्धिपूर्वक, तो ऐसा घर पे झगड़ा ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले वार्निंग दे देता हूँ, मैंने तो बोलना मत कि क्लास में ऐसा बताया था। ठीक है, तो सिचुएशन देख के बुद्धिपूर्वक करना है कि जितना भी थोड़ा भी समझ मिला कैसे कर ना क्या शुरुआत में सब कुछ हो जाता है, महीने सब बंद हो जाता है, फिर ऐसा भी होता है।
बुद्धिपूर्वक करना है, बट these are the standards. See how we can implement, we can approach the standard. That is another point, but not the standards basically. See the situation at your home. Okay, we don't have to quarrel and also just find out how we can make a way nicely. हाँ, तो ये सब चीजें हैं। तो अगले श्लोक में बताया, so this is perfectional stage, क्या होता है वहां पर है। So then again in the next verse it is said what will be the situation in the perfectional stage. अभी ये योगी का चित्त कैसे लगा होता है, बोलते हैं यथा दीपो निवातस्तो नेगते सुपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य यतो योगमात्मनः। As a lamp in windless place does not waver. जैसे दिया होता है जहाँ पे हवा जो थोड़ी ऑक्सीजन है जिसकी वजह से दिया जल सके, वो अलग चीज है, बट ऐसा है कि अब दिया को जहाँ पे हवा नहीं चलती है ऐसी जगह पे रखोगे तो वो स्थिर रहेगा पूरा, ठीक है। सो एज लैम्प इन द windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remained always steady in his meditation on the transcendental self. उसी प्रकार योगी का चित्त भी होता है, मन भी होता है। मन कंट्रोल होने पर क्या होता है, उसका ध्यान चलित उधर से उधर, जैसे स्थिर दिया जो है उसकी स्थिर रहता है। जैसे हवा है तो क्या होता है, भी जाता है कभी कभी तो हमें वो स्टेज लाना है स्लोली स्लोली, ठीक है। अभी परफेक्शनल स्टेज की बात की गई है, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आएगा, उसकी बात की गई है। तो ये देख लिया आपने, हमने प्रैक्टिसिंग योगा रूडा स्टेज, मैनर्स ऑफ सिटिंग, हाउ टू मेडिटेट, ये बताया है यहाँ पर। के ऊपर परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करना है। सो ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा सोना, कम खाना नहीं है, रेगुलेटेड होना है, ये सब चीजें हम देखिए। This is perfection in Ashtanga Yoga does not waver like a lamp in a windless place. ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आता है तो रियलाइजेशन क्या होता है, परफेक्शन ऑफ अष्टांगा योगा समाधि में क्या रियलाइजेशन आता है, वो अगले श्लोक में बताया 20 से लेकर 23 में। यहाँ पर क्या बताया है देखिएगा कि यत्र उपरमत्ते चेतम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिं ग्राह्यमिति इंद्रिय वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकात् ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणापि विचल्यते तं विद्या दुःख संयोगम् योगम योग संविता। जैसे मैं श्लोक का प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो अपने जगह पर भी रह के थोड़ा उच्चारण करने की कोशिश करिए, मैं शुरुआत में बताना भूल गया था। अगर आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते तो आप भी रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन, यहाँ पे लिखा परफेक्शन, जब ये योग है अष्टांग योगा के परफेक्शन में, उसको क्या समाधि बोलते हैं, समाधि पर आ गया तो क्या देखा, यम नियम आसन प्राणायाम, ये तीनों में हम क्रिया कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है। यम में क्या कर रहे हैं, जो नहीं करने के लिए बोला गया उसका त्याग कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। नियम में जो करने के लिए बोला गया वो चीजें हम कर रहे हैं। आसन में बैठने की कैसे बैठना है उसके बारे में बताया है। प्राणायाम में ब्रीथ कंट्रोल की बात आती है, तो मतलब वहां पे क्रिया कर रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार में हम क्या कर रहे हैं, अभी देखिए तो पहले चार थे फिजिकल लेवल की बात की गई है, अभी दूसरे चार है मानसिक लेवल की बात की, इंटरनल। मतलब जो जितनी भी इंद्रियां है, मतलब इंद्रिय जैसे मुख है,
कुछ अच्छा अच्छा स्वाद खाने के बारे में सोचेगा, टेस्टी। फिर कान, तो अच्छा अच्छा हिंदी मूवी के गाने सुनना चाहिए, ऐसा कान को लगता है या जो भी है, ठीक है। तो मतलब वो बहका देने वाले की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे गाने भी है और लगे, लेकिन कुछ बहका देने वाले आज गाने आते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। इंद्रियों को एजिटेट करे ऐसे गानों की बात कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें हैं। आजकल टीवी में आते हैं, फेयर एंड हैंडसम क्रीम की एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वहाँ पे बताते हैं कौन भाई हैंडसम क्रीम लगाता है तो बहुत सारे लड़कियां आके चिपक जाती है, ऐसा बताते हैं। और स्त्रियां है, कुछ फेयर एंड लवली की ऐड आते हैं तो लड़के उसके पीछे चले जाते हैं, ऐसा आता है। सो दैट्स लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक agitates our senses. So basically, so these kind of things we should be very careful. So this kind of advertisements are called modern सुपर्णखा। मैंने बताया था, ये पता नहीं है तुमको मॉडर्न सुपर्णखा मतलब क्या था। सुपर्णखा पता होगा आपने, आपको रावण की बहन थी, वो राम जी के साथ राम जी को प्रति आकर्षित हो गए थे, तो राम जी को पास प्रपोज किया, तो राम जी बोले मैंने तो एक पत्नी व्रत लेके रखा है, आप मेरे भाई के पास गए, तो भाई बोला मेरा भाई भोगतेगा नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब चीजें। तो फिर बोले ये सब का कारण है सीता है, सीता को ही मार डालती हूँ। तो सीता पर जैसे ही आक्रमण किया, ऐसे लक्ष्मण ने क्या किया, उसका नाक काट दिया और कान काट दिया, ऐसा कद्रूपी बना दी उसको। वे रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। तो क्या हुआ कि रावण को बोला अरे मेरा ऐसा हालत कर दिया, आप तो मेरे भाई है, मेरे लिए कुछ करिए। बोला कैसे हुआ, तो रावण ने किया, सॉरी राम ने किया। कुछ एजिटेट नहीं हुआ वो, लेकिन उसके बाद जब सुपर्णखा को लगा कि रावण को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद सुपर्णखा ने एडवर्टाइजमेंट शुरू किया कि हाउ सीता इज सो ब्यूटीफुल, each part of her body is so beautiful that he is only Ravana is meant to enjoy that thing. तब जाके Ravana got agitated. So it's like so Suparnakha did, she advertised. So that's why advertisement is another form of agitating. Advertisement are another form of I should use agitating. There are another form of modern Suparnakha, or whatever you say. There is one article about that modern Suparnakha. So then all those things, and then there are so many things about Western country. They started with they had one point of, so they were talking about women liberation. I'm not talking anything endless, but they utilized cigarette during that point. So there were some Hollywood actors and all, they were using the cigarette as a to show that women liberation. And that marketed the cigarette, cigarette का market double हो गया पहले से। Earlier the men only used to take. Now when they said in the name of liberation, they brought a cigarette, and tobacco selling was cigarette selling was doubled. So that was marketing strategy. So we don't know how they utilize for all those things. So of course, everything has their respective place, respectable place. If we utilize properly, if we engage the things properly, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था वहां तक, तो पहले 4 है जो फिजिकल लेवल पे आते हैं, दूसरे 4 है कहाँ पर आते हैं, मेंटल लेवल पर आते हैं। मतलब तो प्रत्याहार को, इंद्रियों को बाहर की जगह पे अंदर, हमें कछुए की तरह बनना है, यहाँ पर ये बात आ रही है। कुर्म अंगानि सर्वशः 2.58 में हमने बात किया था उसके बारे में। तो कितना भी एजिटेटिंग आएगा, लेकिन हमारी जो इंद्रिया है, जब एजिटेटिंग एटमोस्फेयर आता है तो इंद्रियों को अंदर ले रहा है। एक्सीडेंटली हो गया तो ठीक है, मतलब नजर पड़ गई, ट्रिगर हो जाता है उससे भी, बट डोंट ट्राई टू अगेन कंटेम्पलेशन इज नॉट गुड। ट्रिगर हो गया, गलती से कुछ हो गया वो लगे, बट वी शुड नॉट कंटेम्पलेट on the sense of object. That is very important. So one mind is completely restrained from material mental activities.
बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा। तो ऐसा करना है हमें कि ऐसा हो जाएगा अपने आप होने लगता है। शुरुआत में क्या है, शुरुआत इन द बिगिनिंग वी हैव टू ट्रेन द माइंड, लेटर ऑन इट विल बी हैबिचुएटेड। So then pratyahar, it's like withdrawing the senses from the sense object. Pratyahar, dharana, ध्यान and समाधि। धारणा मतलब वहां पर हमने डिस्कस किया था क्या होता है धारणा में, याद है किसी को? धारणा में हम वो भगवान को लाने की कोशिश करते हैं उस समय पे, फोकस पे, ठीक है। ये रहा फिक्सिंग माइंड ऑन लॉर्ड्स फॉर्म, भगवान को लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान में इंटेंसिफाइड मेडिटेशन, तो ध्यान में और मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और समाधि में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब ही नहीं हो पाएंगे आप। अलग अलग स्टेज है। सो दिस आर फर्स्ट 4 आर फिजिकल स्टेट एंड लेटर 4 आर मेंटल स्टेट। सो परफेक्शनल स्टेज में फिर ऑटोमेटिकली होता है। सो once mind is completely restrained from material mental activities by the practice of yoga, this perfection is characterized by one's ability to see by the pure mind and to release and rejoice in the self. This perfection is characterized by, then you can see that you are not this body or soul. So in that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness. मतलब unlimited खुशियों में हम we be situated. Established thus one never departs from the truth. समाधि के स्टेज पे ऐसा आता है we cannot be distracted. And उसको प्राप्त करने के बाद हमें ज्यादा कुछ और प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती और कुछ प्राप्त करने लायक कुछ रहता नहीं है। Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. कितना भी कुछ आएगा, you will not be disturbed. Just like when we are starting practicing Krishna consciousness, first of all, we privately practice. I remember when I was there, किसी को बताते नहीं है, अंदर से रहते हैं, कौन क्या सोचेगा पता नहीं लगता. Means we have not developed that much strong faith and conviction. That is the beginning stage. Okay, that's fine, but we have begun somewhere. वो अलग चीज है, धीरे धीरे आता है। चलो स्लोली भी कि भाई हाँ पब्लिक भी जाते तो जब करते हैं, वो स्टेज आता है। कभी कभी कुछ बोलते हैं तो कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा एक समय आता है कि इतना भी बोलेंगे डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। So in the midst of greatest difficulty will not be disturbed. Okay? So this indeed is actual freedom from all miseries arising from the material contact. So most of the problem arise because of mind. So when mind is controlled, there is no problem of suffering from material miseries. Actually, means you will not feel the suffering. That is another part. Okay? So in next verse, Krishna says, "Saha nischayena yoktavya yogi nirmana chetasa sankalpa prabhava nakam tyaktan sarvan asesatah mane sevendriya gramam viniyamya samantatah." So one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith. तो हमने याद है चौथे अध्याय में श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम वाले श्लोक में एक श्रद्धा की बात की थी, ठीक है। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। बिना फेथ हम बाहर चल भी नहीं सकते, किसी से हम कुछ दुकान पे जाके कुछ खरीद भी नहीं सकते। क्या पता आजकल वाटरमेलन को लाल करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, एप्पल को चमकाने के लिए वैक्स लगाते हैं, वो सबको तो पता ही है, फिर भी हम जाके खरीदते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। मतलब फिर भी आपको पता है कि खाने के अंदर वो कवर निकाल के खा सकते हैं, जहर तो है नहीं उसके अंदर, जहर तो नहीं डालेंगे। वाटरमेलन को मीठा करने के लिए शुगर की इंजेक्शन भी डालते हैं। आजकल मैंगो, अभी मैंगो की सीजन आ गई, अभी पके नहीं है,
लेकिन वहां पे मैंगो जूस के नाम पे पपाया डाल के देते, मैंने तो आंखों से देखा है भाई। तो फिर भी जाके वही खाते हैं पीते हैं। फेथ होता है कि भाई खराब नहीं करेगा कहीं ना कहीं, तो टेस्ट जीवा ऐसी है, ठीक है। तो फेथ होना बहुत जरूरी है, फेथ के बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, पहली बात। बाहर जाके चल भी नहीं पाएंगे। One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. बहुत दृढ़ता पूर्वक और फेथ होना जरूरी है। रूप गोस्वामी बताते हैं, उपदेश अमृत में बताते हैं, तीसरे श्लोक में क्या बताते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तथा कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सत वृत्ति भक्ति प्रसिद्ध उत्साह। कुछ भी कर रहे हैं उसमें उत्साह बहुत होना जरूरी है, उत्साह होना ही चाहिए। उत्साह, निश्चय, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। धैर्य में धैर्य भी होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने मैंगो का पेड़ लगाया, कल मैंगो उगने लगेगा। आजकल ऐसा भी हो सकता है, मैंगो लगा हुआ, मैंगो उखाड़ करके लगाएंगे तो मैंगो मिल जाएगा आजकल। पूरा वो अलग चीज है, लेकिन समय लगता है। हमने डिस्कस किया था, अगर मस्टर्ड का बीज बोओगे तो 3 महीने के बाद उसकी फसल मिलती है, मस्टर्ड का बीज मिलेंगे। मैंगो का पेड़ लगाओगे तो 3, 4, 5 साल लगते हैं। कोकोनट लगाओगे तो 7, 8 साल लगते हैं। तो अलग अलग समय लगता है, धैर्य होना जरूरी है। Rude words, if I want to use, baby doesn't come immediately after it from my womb. It takes almost 7 to 9 months. So one should engage oneself in practice of yoga with determination, faith, and not be deviated from the path. तो धैर्य की बात आ गई, उत्साह निश्चय धैर्य तथा कर्म प्रवर्तनात्। जो चीज हमें करने के लिए बोला गया है वो हमें करना है, तथा कर्म प्रवर्तनात्। तो हमें आचार्य बोले हैं आपको मंगला आरती करना चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। ठीक है, घर पे रह रहे हैं, 4:30 बजे नहीं कर पाते, 5, 5:30 बजे उठ के 10-15 मिनट, 10 मिनट तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जब करिए उठ के सुबह सुबह 1-2 माला, अगर 16 हो जाती तो अच्छी बात है, 1-2 माला सुबह कर ही लीजिए उठ के, ठीक है। उसके लिए बोलते हैं नियमित स्मरण है न काला, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, बट सुबह करेंगे तो अच्छा होता है। सुबह जो एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर पूरा दिन माइंड फोकस करता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, जब तक कोई ज्यादा शॉकिंग ना हो जाए। तो वो है कर्म प्रवर्तन संग त्यागो, मतलब जो जरूरत वाली चीज नहीं है ऐसी चीजों का और ऐसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और जरूरत इतना ही रखी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। त्यागो सतावृत्ति, आचार्य में जो आचार्यों का चरणों का अनुगमन करिए, अनुकरण नहीं करे, अनुगमन करिए। उन्होंने जो किया है वो करिए। तो डिटर्मिनेशन एंड फेथ, तो क्या होगा उसमें, संग त्यागो सतावृत्ति सद्भि भक्ति प्रसिद्ध्यते। तो ऐसे करने से भक्ति बढ़ेगी। तो उससे पहले के श्लोक में बताया है अत्याहार प्रायश्य, देख लिया ज्यादा खाओगे, प्रयश्च प्रजल्पा, अननेसेसरी टॉक करेंगे, नियमाग्रह जनसंघर्ष, अननेसेसरी एसोसिएशन करेंगे। बोलते हैं कामी पुरुष और स्त्री से ज्यादा खतरनाक होता है कामी पुरुष और स्त्री की चर्चा करने वाले। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इतना लुक्रेटिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, एंड नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम द पाथ। One should abandon without exception all material desire born of material speculation. मन काबू में होना चाहिए, तभी हो पाएगा। Thus control all the senses of all side by the mind. Mind से हमें उसको कंट्रोल में करना है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली माइंड कंट्रोल की बात आ रही है, ठीक है। देखो ये श्लोक इधर ही आ गया, तो बात कर रहे थे इधर, प्रभुपाद ने चर्चा की उसके बारे में। तो आगे के श्लोक में है, बता रहे सने सने उपरा मेदम बुद्धया कृति गृह्यतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। तो यहाँ पे बता रहे हैं
Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction. And thus, the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. Gradually, gradually आएगा, ऐसा नहीं बोला सडन, आज बोला कल हो जाएगा, ऐसा नहीं. Gradually, step by step, but मेहनत करना पड़ेगा. जैसे मुझे याद है, मैं छोटा था, सबके साथ वही किया हुआ होगा. तो मेरी माँ थी, मुझे क ख घ लिखवाती थी. क कैसे लिखवाती थी, मेरा हाथ पकड़ के क लिखवाती थी, ऐसे लिखो गुजरात में. क, फिर ख ऐसे लिखवाती थी, ग ऐसे लिखवाती थी. फिर बोलती थी बेटा अभी 10 बार लिखो. नहीं लिख पाए तो बोला और लिखो 10 बार. जब तक परफेक्शन नहीं आया तब तक लिखवाती गई. ठीक है. तो क्या हुआ, प्रैक्टिस. ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा. स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, वन शुड बिकम situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction. ठीक है. And thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो अगर माइंड नहीं, अगर एक जगह पे नहीं रहता है तो क्या करना है, तो अगले श्लोक में बताया है वो, ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्थतो नियम्य एतद् आत्मनेव वशम नयेत्. तो बता रहे हैं, from wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature. So mind's business, mind is flickering, इसका nature है, and unsteady. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, जहाँ से जहाँ, from wherever मतलब कहीं पे भी माइंड भाग जाता है. माइंड का स्वभाव ही है फ्लिकरिंग, अनस्टेडी, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता और चंचल है माइंड. वो माइंड का स्वभाव है. ठीक है. क्या करना है, वन मस्ट सर्टेनली विड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ. अभी देखिए, मुझे याद है छोटे थे कितना नटखट करते रहते हैं लोग, राइट. बच्चे कितने नटखट होते हैं. ठीक है. बच्चे को बोलते हैं स्कूल पे जाओ, नहीं जाएगा. और मैं भी ऐसा ही करता था, मुझे पता है. ठीक है. हाँ, स्कूल में बोलेंगे तो स्कूल में क्या बोलते थे, मुझे याद है स्कूल में से बाहर निकल क्रिकेट देखने जाते थे टीवी पे, वहां पर ऐसा भी करते थे. तो वो फिर भी माता पिता आशा नहीं छोड़ते थे, वे मार के पीट के. मुझे याद है मैं जब छोटा था खेलने जाता था, मेरी माँ ग्राउंड पे आती थी लकड़ी लेके मारने के लिए, और लेके जाती थी घर पे, पढ़ो अभी, सामने बैठी रहती थी. तो देखिए, मतलब मन की छोड़िए, बच्चों को भी करने में कितना समय लग जाता है. ऐसा 10-15, मतलब मिनिमम 16-17 साल, 18-20 साल के जब टीनेज चली जाती है तब तक ये करना पड़ता है. और फिर भी क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल होने में करीबन 25-30 साल लग जाते हैं. मेहनत करते हैं उसमें. मन को भी यही करना पड़ेगा, कहीं मेहनत करना पड़ेगा, कहीं पे भी भागेगा, लेके आना है. तो मन को तो भागने ही वाला है. तो हमारी सफलता तब कहलाएगी जब, कब तक उसको वापस पकड़ के ला सकते हैं. तो वापस पकड़ के लाना है माइंड को. तो जब करते करते माइंड भागता है तो वापस भगवान के ऊपर लाओ. जितनी बार हम ज्यादा लाएंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी माइंड की. और होता है, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है. देखते हैं, शुरू किया था और अब ठीक है समय लगे, काफी फर्क पड़ा. ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है. आगे बोलते प्रशांत मनसा ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूता कल्मषम. तो बोलते हैं योगी whose mind is fixed on me, means Krishna, verily attains the highest perfection of transcendental happiness, is beyond the mode of passion. रजोगुण से बाहर है. तो जो योगी का मन भगवान के ऊपर केंद्रित है, तो क्या उसको क्या प्राप्त होता है, हाईएस्ट परफेक्शन, दिव्य सुख का अनुभूति होती है उसको. और वो रजोगुण से बाहर है. He realizes quantitative identity with the supreme, qualitative identity with the supreme. भगवान के साथ हम क्वालिटी में सेम है. Thus he is free from all reaction of his past ministry. विशुद्धिकरण हो जाता है उसका. अगले श्लोक में बता रहे हैं सुंदर एव सदात्मा योगी विगत कल्मषा
सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते. Thus the self-controlled yogi constantly engage in yoga practice, become free from all material contamination and achieve the highest stage of perfection, perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. इस तरह से करेंगे, एक समय आता है क्या होगा, हम जो भौतिक गंदगी है उससे हम दूर हो जाएंगे और हम उच्चतम सुख की प्राप्ति करेंगे भगवान की सेवा में. तो ये यहाँ पर बताया है भगवान. अगले श्लोक में बता रहे हैं कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, क्या प्राप्त करेंगे उसके बारे में बात है. सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना. जो सच्चा योगी होता है अवसर भी सारे जीवात्माओं में भगवान को देखते हैं परमात्मा के रूप में. हम लोगों को प्रभु भी बोलते हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा है इसलिए हम प्रभु बोलते हैं. एंड ऑल्सो सीज एवरी बी इन मी, सारे जीवात्मा भगवान में अचिंत्य भेदा भेदे. This is an inconceivable factor. I was reading Isopniषad, there it was point was mentioned that without inconceivability about the Lord is not Lord. मतलब सारी चीज अगर समझ में आ गई तो भगवान भगवान ही नहीं है, आप ही भगवान हो गए. So there are some inconceivability in the Lord which we cannot conceive. That's why Lord is Lord and we are we. तो ये क्या है, मतलब भगवान सबके अंदर है और सब भगवान के अंदर है. So this is inconceivable factor. So that makes a difference, Lord. That differentiates Lord from us. Okay. So indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord everywhere. तो सबके हृदय में वो देखते हैं. सर्वभूतानि च आत्मनि. अगले श्लोक में बता रहे हैं, मैं 2-3 श्लोक और है फिर मैं समाप्त कर दूंगा आज का. व्योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. तो बोलते हैं for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost nor is he ever lost to me. सारे जीवात्मा में भगवान को देखते हैं परमात्मा के रूप में और सारे जीवात्मा को परमात्मा के संदर्भ भी देखते हैं. ठीक है. तो मतलब मछली को पानी के अंदर देखना मतलब दोनों अलग है, और पानी दोनों अलग. मछली पानी में है, कहने का पॉइंट ये है. भगवान के अंदर हमें मतलब हम और भगवान सेम नहीं है, हम अलग है लेकिन भगवान के अंदर समाये हुए. जो तो उनका समदर्शी आ जाता है, पंडिता समदर्शिना, समदर्शी भाव आ जाता है उसमें. सबके अंदर सब जीवात्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में है और सारे जीवात्मा भगवान के अंश है. अगले श्लोक में बता रहे हैं सर्वभूत स्थितम योमम भजते एकत्वम आस्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते. सच योगी हूँ एंगेज इन द वर्शिपफुल सर्विस ऑफ द सुपर सोल. परमात्मा की सेवा में योगी किसके धारण करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं परमात्मा, सुपर सोल. Knowing that I and the super soul are one, remain always in me in all circumstances. मतलब भगवान को 3 स्टेज में हम रियलाइज करते हैं. मैंने बताया था ब्रह्मण, भगवान, ब्रह्मण, परमात्मा, भगवान. ब्रह्मण मतलब सूरज की किरण के समान है, भगवान सूरज की किरण और सूरज भिन्न नहीं है फिर भी भिन्न है. तो सन डिस्क हम देखते हैं वो परमात्मा के रूप में है. हम देखते रहे हमारे सर पे सूरज है, परमात्मा हम एक ही है लेकिन हमारे हृदय में वो वास करते हैं. ठीक है. और उसके ऊपर है हाईएस्ट लेवल पे सूर्य के अंदर जाओगे तो सन गॉड के दर्शन होते हैं, तो वो भगवान है. तो योगी क्या करते हैं, वो परमात्मा की सेवा में लगते हैं, मतलब मन से अंदर से पूरी. नोइंग दैट आई मतलब भगवान और सुपर सोल दोनों सेम है लेकिन फिर भी थोड़ी भिन्नता है. मतलब सेम है, आर वन, रिमेन ऑलवेज इन मी इन ऑल सर्कमस्टेंस. तो मतलब दोनों सेम है बट उसको रियलाइजेशन ये भी हुआ कि भगवान का भी अलग फॉर्म है, उसको सिर्फ हृदय के अंदर देखते हैं. अगले श्लोक में बता रहे हैं, उसके बाद एक और श्लोक है आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत. तो यहाँ पे बता रहे हैं
इज परफेक्ट योगी हु बाय कंपैरिजन टू हिज ओन सेल्फ sees the true equality of all being in both their happiness and their distress. परफेक्ट योगी कौन है? अपनी अपनी तुलना बाय कंपैरिजन टू हिज ओन सेल्फ क्या करते हैं कि सारे जीवात्मा को मतलब उनके उनके ही जैसे हैं, मतलब सारे शरीर अलग अलग है लेकिन सब आत्मा है, दूसरे से इक्वालिटी से देखता है। कोई कुत्ता है लेकिन कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, तो आत्मा को देखता है, वो शरीर को नहीं देखता है। तो उस इक्वालिटी से वो देख रहे हैं इन बोथ देयर हैप्पीनेस एंड देयर डिस्ट्रेस। अर्जुन, ठीक है, सुख दुख में वो उनका संभव जो उनका से संभाव है वो चला नहीं जाता है, सबको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, आत्मा का, वो भी आत्मा। अगले श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है, अभी मैं थोड़ा उसका हिंट दे देता हूँ, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। योऽयं युगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्व स्थितम स्थिरम। बोल रहे हैं और मधुसूदन, द सिस्टम ऑफ योगा व्हिच यू हैव समराइज्ड, जो आपने योग सिस्टम बताया, appears impractical। अर्जुन बोल रहा है इम्प्रैक्टिकल है। अर्जुन 5000 साल पहले जब यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, जिसके एक नोटिफिकेशन से हम हमारी पूरा मन कहाँ पे होता है और कहाँ पर आ जाता है पूरा, तो ये नहीं था उस वक्त। उस समय अर्जुन बोल रहा है कि अरे जो योगा आपने बताया प्रैक्टिकली, दैट इज इम्प्रैक्टिकल, इनड्यूरेबल टू मी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा वो। बोलते हैं क्यों? माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी। अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन कौन है? भगवान का मित्र है, उसने सारे वेदों का अध्ययन किया है, कितने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, वो बोल रहे हैं मैं माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। मी त्याला म्हटलं की बाहेर आहे ना, पटकन अभ्यास करून घे, करून दे ना, आता आता तरी बसतोय का बघ, झालं का त्याला बसायचं नाही। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? माइंड इज चंचलम ही मना कृष्णा, माइंड इज फ्लिकरिंग, रेस्टलेस, टर्बुलेंट, प्रमाथि मतलब एजिटेटिव, बलवान स्ट्रॉन्ग, दृढ़म ऑब्स्टिनेट। माइंड इज restless, turbulent, obstinate and very strong, oh Krishna, and to subdue it I think is more difficult than controlling the wind। हवा को कंट्रोल कर सकते लेकिन माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, तो कल चर्चा करेंगे हम। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।